our next speaker is Mr. Kuldeep Verma. He's a powder coating consultant. He has more than 30 years of experience in powder manufacturing, technical and administrative positions. He's worked with companies like Rapid Coat, Paramount Powder Inc., Sharp Coatings, United Coating Industries. He has also received the Udyog Bharti Award in the year 2007, Quality Achievement Award in 2010 from Delhi government. He's currently running his own consultancy firm, Sai Consultancy, since the year 2013, and he's serving more than 50 big organizations. Well, now he's going to talk on the testing of raw material for powder coating, special testing. But before that, he's going to tell us all about the history of powder coating in India. He's going to tell us how and where did it all start from. ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सारी कहानी हमें सुनाने वाले हैं none other than Mr. Kuldeep Verma. He's a powder coating consultant, and let's hear it for Mr. Kuldeep Verma. Can we have a huge round of applause for him? जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। भाई आप लोगों ने अभी लंच किया है और हमारा टॉपिक इसलिए इस टाइम रखा गया है कि आप लोगों को नींद नहीं आए। ठीक है, अगर लंदी कोई टॉपिक होता आप लोग को नींद आ जाती, इसलिए हमारा ऐसा रखा है। अभी सबसे पहले हम पाउडर कोटिंग 83 में इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ वो पहले बताएंगे। This is the person, Mr. Tony Jatia. He was the owner of Hardcastle Wood. Yes, actually, his father started, Mr. N.M. Jatia. Tony Jatia is brother of, Amit Jatia, the owner of McDonald in India. He is the brother. Slides in there. Today, actually, I'm missing my technical guru, Mr. Jagmal Singh. He is no more. So, if he would be here, I would enjoy much more. These are the 3 persons in Sarigam unit. Now it is with Asian Paint. In 2006, Asian Paint has taken over this unit. Jagmal Singh ji, the Nishish Sharma ji, he was the production in charge, and the works manager, Mr. Abhay Jain ji. He is the first person, Mr. K.S. Nair, who sold the powder coating in India, the first kg of powder coating. This is the person from the powder coating team, you know well. This is the person from Delhi. Without remembering him, this cannot be complete. He is the person, Mr. Uday Malhotra. He was the first person to use powder coating in India. This is one clip, and Mr. Nishish Sharma, because I joined Hardcastle in 88, and Nishish Sharma was there in... ex-employee of Hardcastle and Ward Manufacturing Company Limited, who have been the pioneers in introducing powder coating to Indian market. It was around 1983 that the powder coating started being manufactured in India. Being the only one to produce it, we were supplying it to all the OEMs. At that time, Mr. Kantilal M. Shah was the first production in charge of powder coatings. There was an unfortunate accident in 1985 which resulted in incapacitating Mr. Shah, so he could not attend to his duties. At that time, Mr. Jayant L. Shanbag and myself were introduced to control the powder coatings, both R&D as well as manufacturing units. We expanded after that to Sarigam near Vapi, where a fresh production line from APV Machines, England, was brought in
to improve the production quality. By that time, our R&D as well as QC was being controlled by Mr. Jagmal Singh and Mr. T.K. Sharma and Mr. Kuldeep Verma in a very perfect way. That was a time of new challenges as well as new learning methods for us and for everybody in India. In 1993, the company sponsored me to go and have a learning and training session in our licensors unit at Belgium for a month, where we were shown their production and quality control methods, as well as we were given a sample of what new technologies they are making for us. In 1995, we added another line of production of powder coatings in Kalyan itself. By that time, new companies like Marpol, Goodlast Nerolac, and other units were coming up who were also manufacturing powder coatings, and the competition started to rise again. I left Hardcastle in 1998 and moved on to another line in mining area. This is a brief history of Hardcastle and Ward productions from the beginning. It is the great effort of Mr. Kuldeep Verma to bring the things in your knowledge. I thank him for giving me the opportunity to tell the original setup that was there. I would like to welcome all the delegates to the Paint Vision and hope you all will enjoy it and get a very good knowledge that can be implemented in your production lines, and which will improve your qualities, as well as new products will be available in the market. Thank you. Thank you very much. थैंक यू फ्रेंड. सो नाउ अब अपने पे टॉपिक पे आते हैं. देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम तो पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चर हैं. पाउडर की टेस्टिंग हम नहीं बताएंगे, वो ऑल नो. बट कुछ रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हम यहाँ ले रहे हैं, जो शायद हमारे जो MSME या स्मॉल स्केल पर अभी लोग काम कर रहे हैं उनके मतलब की होगी, प्लस शायद एक दो टेस्टिंग ऐसी होंगी जो आप लोगों के भी मतलब की है. दिस इज माय बेसिक इंट्रोडक्शन. वो चार्ट कन्वर्जन में सेकंड वाला. देखिए, एसिड वैल्यू पॉलिस्टर रेजिन की हम लोग करते हैं टेस्टिंग. और क्यों करते हैं? क्योंकि सबको पता है इपॉक्सी एंड पॉलिस्टर को 50-50, 70-30, 60-40, 80-20. बट ये क्यों होता है? बिकॉज इपॉक्सी का इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट एंड पॉलिस्टर का एसिड वैल्यू, ये पॉलिस्टर एसिड वैल्यू हम कर रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम के लिए. बिकॉज जब हम हाइब्रिड या PP के बाद में PU पे जाएंगे, वहाँ पर हाइड्रोक्सिल वैल्यू आएगा. सो नहीं, थर्ड करिए. हाँ, ठीक है. ये देखिए, हमने एक छोटा सा बनाया हुआ है कि अगर इपॉक्सी का इक्विवेलेंट वेट 750 है, नॉर्मली इपॉक्सी का इक्विवेलेंट वेट हम लिखते हैं 750 ± 50, मीन्स 700 to 800. इसका पूरा रेंज है. तो वहाँ पर गैप बहुत है, इसलिए हमने एवरेज 750 लिया. बट अगर हम पॉलिस्टर की बात करें तो 50-50 के लिए पॉलिस्टर रेजिन की एसिड वैल्यू 75 ± 2 होना चाहिए. और अगर हम बात करते हैं 70-30, 60-40, तो इनके लिए 25 से 35 ऐसा रहता है. तो देखिए, हम अगर इसमें चेंज करेंगे, सपोज पॉलिस्टर 70 लिया है और 33 एसिड वैल्यू है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे 70-30 ऑलमोस्ट आया है. बट आप सभी लोग जानते हैं, जब आप लोग पॉलिस्टर यानी पाउडर बनाते हैं
तो कोई बैच आपका बढ़िया आ जाता है, कोई बैच में कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है, बिकॉज उसका एसिड वैल्यू हर टाइम 33 नहीं होगा। ये हम चेंज करके दिखाते हैं। 33 को 20 कर दीजिए, वैल्यू चेंज करिए बस। वो पॉलिस्टर रेजिन एसिड वैल्यू है ना, उसको 20 कर दीजिए। हाँ, इसको 20 कर दीजिए, या 28 कर दिए, 28 करिए। देखिए अगर ये 28 क्या, एंटर मारे, एंटर। हाँ, अब देखिए इपॉक्सी रिक्वायर्ड चेंज हो गया। सो एसिड वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 70-30 एवरी टाइम एसिड वैल्यू 33 होगा, तो वो नहीं होगा। ये पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरर भी जानते हैं, बट इसीलिए आपको कभी कभी रेशियो में चेंज करेंगे तो रिजल्ट आएगा, या आपको ऐसा लगता है कि क्यूरिंग नहीं हो रहा है या मैकेनिकल पूरा पास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो क्यूरिंग नहीं हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे भी रहेगा सर। सेकंड स्लाइड, इसी में फोर्थ ये एक फॉर्मूला भी आगे काम आएगा, जो कि पाउडर मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा पाउडर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी आपका कस्टमर होगा, वो पूछता है कि भाई 1 किलो में कितना स्क्वायर मीटर कवर होगा। सो दिस इज थ्योरेटिकल कवरेज। सो ये डिपेंड करता है कि एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड थिकनेस के ऊपर। अभी हमने एवरेज लिया हुआ है, सो आई विल चेंज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो 1.5 है उसको 2 कर दीजिए। हाँ, नाउ देखिए एरिया ऑफ कवरेज चेंज फ्रॉम 12 स्क्वायर मीटर टू 8.9 स्क्वायर मीटर। सो ये हमने फॉर्मूला इसलिए दिखाया कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना बहुत जरूरी है। अब मेन टॉपिक, मेन लाइन पे यस, दिस इज एक्टिव कंटेंट। एक्टिव कंटेंट्स मीन्स, इसको हम ये बात करते हैं जैसे सपोज फ्लो एडिटिव है आपका। फ्लो एक्टिव में रॉ मटेरियल सप्लायर आपसे बात करता है कि मेरे में फ्लो एक्टिव कंटेंट ज़्यादा है। सो इसके लिए आप 2 मेथड है, या तो फ्लो एडिटिव कंटेंट जो फ्लो एडिटिव है उसको क्रूसिबल में रखिए। क्रूसिबल को आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट कर दीजिए। सो उसमें जो भी पहले मटेरियल 4 होगा, 4 के बाद में जो भी उसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल वाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। सो यानी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब बर्न हो चुका है। सो वेट डिफरेंस से आप उसमें एक्टिव कंटेंट, यानी क्योंकि जो आपका रेसिड्यू है दैट इज एब्जॉर्ब सिलिका ओनली, सो बाय डिफरेंस यू कैन कैलकुलेट कि हमारा एक्टिव कंटेंट कितना था। बहुत सिंपल है। या अगर आप क्रूसिबल में नहीं करना चाहते हैं, सो आप उसको किसी सॉल्वेंट पे कर लीजिए। सॉल्वेंट पे करने सेंट्रीफ्यूज में रखना पड़ेगा, और वहाँ पर जब आप उसको हाई स्पीड से सर्कुलेट करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगेन फिर वही सिलिका बचेगा आपको। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। शायद आपके जो पाउडर मैन्युफैक्चरर हैं उनके या किसी डीलर ने भी ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि आपका पाउडर समझो रखा हुआ हमारा, तो वो इपॉक्सी है या प्योर पॉलिस्टर है, कैसे जानेंगे? क्योंकि बीच में इपॉक्सी की जैसे कॉस्टिंग बढ़ गई थी या इपॉक्सी कम हो गया, या मतलब उनको कस्टमर को ये बताना है कि भाई हमारा प्योर पॉलिस्टर पाउडर है या हाइब्रिड सिस्टम है। इसके लिए मेथड है, आपके क्योर्ड फिल्म के ऊपर आप
कंसनट्रेट HNO3 या सल्फ्यूरिक एसिड रख देंगे, उसको 5 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ दीजिए। बाद में उसको एक फिल्टर पेपर वॉटमैन 40 या वॉटमैन 43, ये दो किसी भी फिल्टर पेपर के ऊपर उसको डिकेंट कर लीजिए। और जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा टैप वाटर डालेंगे, अगर इपॉक्सी होगा तो वो थोड़ा पिंकिश शेड में आ जाएगा, और अगर प्योर पॉलिस्टर होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, कलरलेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है आपके लिए। ये हाइड्रोक्सिल वैल्यू टेस्टिंग के लिए है, यानी जो PU के लिए आप लोग पॉलिस्टर है उसकी हाइड्रोक्सिल वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल वैल्यू और जो IPDI का आइसोसाइनेट है, जिस तरह से इपॉक्सी और पॉलिस्टर में एसिड वैल्यू एंड इपॉक्सी इक्विवेलेंट वेट के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से निकाला गया है, उसी तरह ये OH वैल्यू एंड आइसोसाइनेट वैल्यू, उनसे इनकी कैलकुलेशन होगी। This is particle size distribution. This data is very important. You can note down. This is a very important percentage passing through sieve. 32 micron sieve, 35 to 48% passing. 63 micron, 85 to 95%. 80 micron, 96 to 99%. And 100 micron, 100% passing. But this is for the smooth finishes. For the texture structure, this may change. You have to take slightly coarser than this data. This is the RD bottle. So by this bottle, you can check the specific gravity of the dry powder or any raw material, even specific gravity of the pigments, specific gravity of the barium sulfate, any dry powder, you can check the specific gravity. That is very important. Even titanium also, because suppose titanium specific gravity is 4.25 almost. So if other adulteration is there, specific gravity will be different. But in some time, some people may ask कि भाई टाइटेनियम में उसी स्पेसिफिक ग्रेविटी का, क्योंकि बेरियम सल्फेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, अगर वो किसी ने मिक्सिंग किया हो तो कैसे देखेंगे, उसका भी है आगे। दिस इज फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज, यानी जो गर्मी के टाइम पे लम्स फॉर्म हो जाता है उसका आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इसको एक छोटे से कंटेनर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ पाउडर को लेकर और 40 डिग्री पे मेंटेन करिए फॉर 1 वीक, बट उसको डेली हमें देखना है, और 1 वीक के बाद में उस पाउडर को फॉर दी फ्लूइडाइजेशन चेक करना है कि फ्लूइडाइज प्रॉपर हो रहा है या नहीं। अगर उसमें लम्स फॉर्मेशन है, इवन सॉफ्ट या फ्लूइडाइज नहीं हो रहा है, देन देयर इज सम फॉर्मुलेशन, रॉ मटेरियल यू हैव टू चेंज। दिस इज द प्योरिटी ऑफ टाइटेनियम। देखिए टाइटेनियम का एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि टाइटेनियम स्टिकी होता है थोड़ा, तो अगर आप टाइटेनियम को मुट्ठी में लेके और कस के बना के लड्डू और उसको रख दीजिए वाइट पेपर पे, और अगर वो नहीं टूटा, मीन्स देयर इज़ नो अडल्ट्रेशन, दिस इज़ प्योर टाइटेनियम। और अगर उसमें 10% से ज़्यादा का कुछ मिक्सिंग है तो जैसे ही आप रखेंगे वो फूट जाएगा। बिल्कुल ये बेसिक चीज़ है। तो आज हम यहाँ टेस्टिंग सारी बेसिक हमने ली हुई है सर। Thank you. These were actually for the raw material. Well, thank you so much, Mr. Kuldeep Verma. आपसे मैं गुजारिश करूँगी प्लीज़ कहीं मत जाइए, please be here because we would like to felicitate him, and I would request Mr. Saurabh from Vimal Intertrade to please felicitate and honor him. Mr. Saurabh, can we please have you up the stage, and we would like to felicitate Mr. Kuldeep Verma. Thank you so much, sir, for sparing our time. Well, he gave us the amazing and very basic testing concepts: active content testing, epoxy resin testing, particle size distribution, specific gravity testing, purity of titanium dioxide, and much, much more. Thank you so much, sir, for your valuable presentation.